Okay, let's start. So, very good evening to everyone. Am I audible? Chalo, ठीक है, very good. So, those who are having any problem, kindly quit the meeting and rejoin. So, today, what we're going to learn? Today, we're going to learn what we call the sign of quadratic expressions. We're going to learn something about sign of quadratic expressions. Mind you, I've told you expressions. I'm not told you equations. Correct now? So general form would be what? F of x, it would be ax square plus bx plus c. Correct now? If I make f of x equal to 0, it becomes an equation. This is an expression. Fine, there should be no doubt into it. So tell me, you might have already know the graph of linear functions. What does the graph of the linear function represent? You take any linear graph. Right now, in two variable, you take any linear graph, whether x plus 2y equals to 3. What does it represent? Fine. It represent a line. इसमें तो किसी को doubt नहीं होगा. Fine. Now, what does this graph represent? ये जो graph है, what does this represent? Correct ना? It represent a shape which we called what? Which we called as a parabola, है ना? Which we called parabola. तो आप कोई भी ग्राफ बोलिए, है ना? So कोई भी बोलो जरा, कोई भी इक्वेशन बोलो. Tell me any equation. जल्दी से मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखना चाहता हूँ. जल्दी से कोई quadratic इक्वेशन बोलो. Tell me any quadratic इक्वेशन. हाँ. So you told x square minus 5x plus 6. ठीक है, this is the one quadratic equation. Let's say x square plus x plus 1. Fine. So if you plot these, now let me share you a. If you plot these, you will always get what? A quadratic, a graph, a shape like U. Know? So let me plot this. So let's say you're plotting this. X to square plus x plus 1. So you can clearly see on the screen, the graph is what? U-shaped. Correct now? The graph is U-shaped. You can clearly see this is U-shaped. It is not cutting the x-axis. This is x-axis. This is y-axis. But the shape is always U. Correct now? Let's say you अनिकेत ने जो बोला था वो प्लॉट कर देता हूं. Let's say you are plotting the second one. Correct now? Let's say you're plotting x square minus 5x plus 6. Again, you can see on the blue. Correct now? It is a real. That's why it's cutting at the two places. You can clearly see. This is the first place, 2, 0. This is the second place, 3, 0. Correct now? So, is everyone clear with this concept? कि sir, यदि quadratic function है, if the function is quadratic, then 100% the shape is going to be parabola. इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो. इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. Correct now? That the shape would be a parabola. The shape would be a parabola. ठीक है. नेक्स्ट. अच्छा, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये ना अभी मैं इसकी दो चीजें डिफाइन कर रहा हूं. ठीक है. आई एम गोइंग टू डिफाइन इट्स टू थिंग. वो यू विल स्टडी इन द लेटर क्लासेस कि कब हाइपरबोला होता है, कब वो होता है. राइट नाउ जस्ट टेल मी, are you aware of the guy? What do you mean by the domain of the function? What do you mean by the range of the function? Are you guys aware of these terms? है ना? So what is the domain of the function? नहीं समझ में आया तो अभी समझ लो. Domain of a quadratic function of this form is the values of x for which the function is
defined. So what will you say? All the values of x for which f of x is defined is called as what? Domain of f of x. What is range? Fine. The range is all the possible values. The range is all the possible values that f of x can take, ठीक है, while putting while, है ना, पुटिंग x को कौन सी वैल्यू डालोगे? डोमेन में डालना, डोमेन के बाहर मत डालना, है ना, while substituting x from its domain, by substituting x in f of x, है ना, from its domain, from its domain, ठीक है. So this is what range and domain. So just tell me, ये quadratic function जो है इसकी डोमेन क्या होगी? What would be the domain of a quadratic function? R, करेक्ट ना. आप इसमें सारे रियल नंबर डाल सकते हो, है ना. ये रियल नंबर लाइन है, 0 1 2 -1 -2. आप यहां से कोई भी नंबर इसमें डालेंगे, है ना, इट विल बी डिफाइंड, you'll get a value of f, correct. So the domain of a quadratic is a all real number, ठीक है. अच्छा, tell me what about range? What can I comment upon range? It depends, है ना. Range depends from question to question. For example, let me take a different color. For example, let's say I ask you, what is the range of this? Y of x square plus 1. What is the range of this? Correct now? So the range would be what? It would be from 1 to infinity. The range of this function is 1 to infinity. ये फंक्शन 1 से नीचे नहीं जाएगा. This function will not go down from 1. कैसे? आप प्लॉट करके देख लो, है ना. Let me plot this. तो हम डोमेन और रेंज को दो तरीके से समझने का ट्राई मारते हैं. एक तो डेफिनेशन वाइज, गाइस, करेक्ट ना. We will try to understand these two concepts. First, from definition that I already written. Second, we will try to understand with the help of graph, है ना. So let us try to understand first with graph, because then will definition part will be clear. So graph में क्या होगा? जो x कोऑर्डिनेट के वैल्यूज हैं, the x कोऑर्डिनेट will be domain, और जो y कोऑर्डिनेट आएगा it would be range, ठीक है. x coordinate would be domain and y coordinate would be range. So let me share with you this कि x square plus 1 का आपको खुद दिख जाएगा अभी. So let me, इसी को मैं पहले वाले को थोड़ा इसको मैं हटा देता हूं एंड इसको दिखाता हूं. As you clearly see on the graph, ये जो रेड वैल्यू है बेटा, है ना, प्लीज फोकस हियर. Let me take the marker. You can clearly see ये ग्राफ जो है ये y वैल्यू है बेटा. This is y value and this is x value. ना आप x की कोई भी वैल्यू डाल सकते हो. देखो, you can put any value of x, doesn't matter. पर y की जो वैल्यू है वो 1 से नीचे नहीं आ रही है ना. This is the final value. इससे नीचे नहीं आएगा y. So the from 1 to infinity, this is range graphically. थोड़ा इसको सोचो, है ना. रेंज इज ऑन y एक्सिस. दिस इज डोमेन, सारी वैल्यूज के लिए डिफाइन है. इज द ग्राफिकल थिंग. ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डोमेन एंड रेंज इज क्लियर.
हाँ, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया? बोलो, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया? सर यहाँ पे आपने बताया था कि डोमेन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑल रियल नंबर्स। ऑल सर रियल। पर जब हम लोग इस इक्वेशन में आयोटा को पुट करेंगे तो मतलब तब भी y इक्वल्स टू 0 आता है। फर्स्ट थिंग श्रवण, फोकस ऑन द व्हाइट बोर्ड, है ना? डोंट गो अवे। म्यूट मत करना बेटा, चुप रहे बिल्कुल। नहीं करा सर, हाँ, नहीं करा। म्यूट नहीं करना मेरे को। तू व्हाइट बोर्ड पे फोकस कर, जल्दी से यस बेटा। सर। व्हाइट बोर्ड पे क्या लिखा है? सर आपने मतलब ड्राइंग हाँ, बनाया रेंज, अच्छा नहीं, इसमें ये क्या लिखा है डोमेन का वैल्यू? fx all the values of x for which fx is defined। डिफाइन, ठीक है। तो हम यहाँ पे रियल नंबर लाइन बनाइए कि कॉम्प्लेक्स नंबर लाइन बनाइए मैंने? रियल सर। हाँ, तो फिर तू कॉम्प्लेक्स वैल्यू कैसे डाल रहा है? सर मतलब फर्क नहीं पड़ रहा है fx के वैल्यू से, रियल वैल्यूज ही लग सकता है। ठीक ना? मैं एक्स क्या वैल्यू डाल रहा हूँ? एक्स की कौन सी वैल्यू डाल रहा हूं मैं? रियल डाल रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स डाल रहा हूं? सर मेरा ये डाउट है कि हम लोग कॉम्प्लेक्स इसीलिए नहीं डाल सकते क्योंकि डेफिनेशन में अलाउड नहीं है। डेफिनेशन में क्यों कॉम्प्लेक्स के लिए डिफाइन नहीं रहेगा क्या ये? कॉम्प्लेक्स के लिए डिफाइन रहेगा नहीं रहेगा? इज आयोटा डिफाइंड? सर मतलब हम लोग ने उसको रख दिया वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ तो -1। क्वेश्चन इज जेन्युइन ना? इज आयोटा डिफाइंड? यदि मैं इसमें आयोटा डालूंगा तो क्या आएगा? इट वुड बी -a प्लस बी आयोटा प्लस सी। ठीक है, इज दिस डिफाइंड? नो सर, पर अगर बी जीरो। डिफाइंड, इट इज डिफाइंड डियर। दिस इज डिफाइंड। This c minus a plus iota b, it represent a complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गेंट प्लेन में डिफाइन करते हैं। इस c माइनस हाँ से उसका एक आएगा, उसमें आएगा, रियल एक्सिस में आएगा, b इमेजिनरी एक्सिस पे आएगा। But we सर are आपने not dealing बनाया with, था। we are not dealing with complex number now. So for the time being, avoid putting x equal to iota. That's why मैंने रियल नंबर लाइन डिजाइन की है। ओके सर। ठीक है, तो डेफिनेशन इज ऑल द वैल्यूज ऑफ x which define, which satisfy, which make this a definition as defined, है ना? तो हम सब रियल वैल्यूज डाल रहे हैं। आप कॉम्प्लेक्स डालोगे तब भी डिफाइन होगा वो। तो but we are only dealing with quadratic equations with real coefficients and real variables। ठीक है ना? आप पढ़ते हो स्टार्टिंग में ही तो आपको डिफाइन किया जाता है। तो रिमेंबर आवर लिमिट इज रियल। अच्छा, so what are discussing? I was discussing this। तो अभी एवरीवन एग्रीज कि जो शेप होगा इट वुड बी अ पैराबोला, और डोमेन और रेंज क्लियर हो गया। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट मेरे को ये इंटरेस्टेड है कि ए की जो वैल्यू होती है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो डज ए प्लेज एनी रोल इन डिसाइडिंग कि उसका ओपनिंग है वो ऐसा होगा कि ऐसा होगा? करेक्ट ना? यस। इफ ए इज पॉजिटिव, रिमेंबर, इफ ए इज पॉजिटिव इट इज ऑलवेज कॉनकेव अपवर्ड। ठीक है ना? इट इज ऑलवेज कॉनकेव अपवर्ड। एंड इफ ए इज डाउन it is always concave downward। ठीक है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? हाँ, बोलो। सर बाय ए इक्वल्स टू, ओके सर। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे व्हाट इज ए को डेफिनेशन क्या है? ए इज बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म। ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, नाउ वी आर इंटरेस्टेड कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी।
वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट, कि ये जो फंक्शन है। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, इस केस में मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है कि मैक्सिमम? ये जो शेप है ना बेटा, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, vertex of parabola. This is also called as what, vertex of parabola, ठीक ना? तो a इक्वल टू ग्रेटर के जीरो के केस में, जीरो के केस में यहां कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम। और इस केस में कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, मैक्सिमम। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू इन दिस केस? मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, infinity. What is the minimum value in this case? We will write the formula. Minimum and maximum value in every case is minus d by 4a. ठीक है ना? What is the minimum value in this case? It is minus infinity. Maximum value is again minus d by 4a. ना? तो ये जो पॉइंट है बेटा, इसके कोऑर्डिनेट जो है, ठीक ना, इसके कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट आता है माइनस बी बाय 2a, वाई कोऑर्डिनेट क्या ये आएगा, है ना, माइनस डी बाय 4a। इस वाला पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। सिमिलरली ये पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट भी क्या आएंगे, माइनस बी बाय 2a माइनस कैपिटल डी बाय 4a। एंड व्हाट इज कैपिटल डी? कैपिटल डी इज b स्क्वायर माइनस 4ac। ये समझ में आता सबको कि इसमें कंफ्यूजन है? करेक्ट ना? एक्सप्रेशन क्या आपका? द एक्सप्रेशन इज दिस, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको रीअरेंज करोगे ना गाइस, इफ यू रीअरेंज दिस you'll get it what, you'll get y प्लस d अपॉन 4a। लास्ट टाइम मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बताया था आपको, ठीक है? दिस वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, a इंटू एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, ठीक है? तो माइनस बी बाई 2a डालोगे इसमें, तभी ये 0 बनेगा। हाँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यस। यू कैन ड्राइव इट ऑल्सो फ्रॉम व्हाट, कैलकुलस ऑल्सो। कैलकुलस से भी ड्राइव हो जाता है ना? बट कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ये ड्राइव हुआ है। डेरिवेशन क्लियर है? ये जो डेरिवेशन है ना, मैंने रैंडम लिख लिया, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये कहां से आया? ये बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आया है। इसको आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर में लिखोगे ना तो आपको ये मिलेगा, ठीक है? बोथ मेथड, कैलकुलस से भी कैलकुलेट कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, ठीक है? अभी कोई मेरे को जैसे फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो, जल्दी से बोलो, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो, तो आपने बोला एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। तो पहली बात ये बताओ, इसका a पॉजिटिव है कि निगेटिव? इसका a पॉजिटिव है, इसका a पॉजिटिव है। इट मींस इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? d निकालो, कितना आएगा? d वुड बी 36 माइनस प्लस 28, कितना हो जाएगा ये, है ना, डिवाइडेड बाय 4a। तो ये d है, हमको माइनस निकालना है, तो इट वुड बी माइनस 36 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1, 4 से डिवाइड कर दो, 9 प्लस 7 16। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो माइनस 16 आएगी गाइस। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो y एक्सिस में नीचे 16 तक ही जाएगा, है ना? सो लेट मी प्लॉट दिस, लेट मी प्लॉट दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, -7 था प्लस 7 था, -7, ओके। सो यू कैन क्लियरली सी ऑन द ग्राफ, लेट मी जूम आउट, ठीक है? यू कैन क्लियरली सी हियर -16,
दिख रहा है कोऑर्डिनेट यहाँ पे, ये देखो ये वाला ये -16, ठीक है। इज दिस थिंग क्लियर? ये आया ना -16, वाई थोड़ा -3 आया, पहला कोऑर्डिनेट एक्स होता है गाइस, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज एक्स। क्या पढ़ रहे हो आप? अरे कैसा कर रहे हो, इतना इजी है ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ए की वैल्यू क्या आएगी 1, बी की वैल्यू क्या आएगी 6, सी की वैल्यू कितनी आएगी -7। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है -b/2a, ये आएगा -6/2 × 1 -3, तो ये वाला -3 तो है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट -3 है। वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होता है, वो होगा -d/4a। कितना आया वो अभी निकाला -16। बोलो। सर सर इन -d/4a² होना चाहिए ना सर? 4a² कैसे होगा बेटा? सर क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करेंगे तो b²/4a, सॉरी c/a - b²/4a² आ रहा है। नहीं नहीं, 4a ही आता है, करके देखो। ठीक है सर। चलो, अभी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू में किसी को कोई डाउट है क्या? एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट इन दिस मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू? सर आपने बोला था कि अगर ए पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर ए नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं सर। यस। सर पर जैसे कि अभी मैं एक इक्वेशन लूं सर, -x² + 6x + 7, अगर मैं इस इक्वल्स टू y 0 मान लूं सर, हाँ सर तो मतलब यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन ट्रांसपोज कर दूंगा तो ए कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाएगा। बेटा, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ओके सर, तो मतलब ये इक्वेशंस के लिए फॉर्मूला काम नहीं करने वाले। ये इक्वेशन है ना, मैंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में लिखा आपको। ओके सर, मतलब ये सब इक्वेशंस के यहाँ लिए हम लोग को मतलब नहीं y लगाना। 0 नहीं लोगे आप, यहाँ y लोगे, फिर करो ओ, प्लॉट। हाँ सर फिर से चेक किया, a² ही आ रहा है, इस बार काम किया क्योंकि कोएफिशिएंट 1 है ना। हाँ, सर आप डिराइव करो सर, सच में मैंने डबल चेक किया है, a² ही आ रहा है, क्योंकि c/a तो कहीं जाएगा नहीं ना, वो वाला ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हुए। अरे बेटा, पैराबोला का तेरे को बेसिक फॉर्म पता है ना, y = क्या होता है, y² 4ax होता है ना। ठीक है सर। हाँ, तो उस a को वहां कंज्यूम कर लेना, उस a को 4a में कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है सर, मैंने किया फिर देख ax। ऐसा आएगा फॉर्मूला, तेरा ऐसा आया क्या बता मेरे को, d/4a दिस इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ये आया। सर ये तो आना चाहिए ना, d/4a, हाँ ठीक है सर। ये आया क्या, रीअरेंज करके ये आएगा, ठीक है सर, बाद है में। ना। तो अभी ठीक है तू सर। इसको इसको y अज्यूम कर ले, इसको x अज्यूम कर ले, वो ट्रांसफॉर्मेशन पे मत जा, तो तू पढ़ेगा आगे जाके, है ना। तो ये हो जाएगा y², और इसको इस साइड लेके आएगा ना तो y² = 4ax करके स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा, पैराबोला ही बनेगा। ठीक है सर। ठीक है, चलो। तो अभी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है ना?
चलो नाउ वी आर इंटरेस्टेड, ये तो बहुत इजी है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन, ये बच्चों वाला है, इससे बड़ा लेवल का भी करना है, ठीक ना। सो क्योंकि ये बेसिक है, ये समझ में नहीं आएगा तो आगे की पूरी स्टोरी गई, अभी ध्यान रखना। आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये सब आता है, ठीक है। तो नाउ आई एम इंटरेस्टेड कि ये ग्राफ a इक्वल टू 0 है, तो जल्दी बताओ ग्राफ कैसा बना दूं, ऐसा बना दूं, है ना। क्वाड्रेटिक इसका ही बना रहे हैं, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन दिस, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। तो दिस इज फर्स्ट केस, a ग्रेटर देन 0। पर यदि मैंने, है ना, d ग्रेटर देन 0 बनाया तो एक्स एक्सिस कैसा बनाऊं, इसको काट के बनाऊं कि टच करके बनाऊं कि क्या करूं, शुड आई इंटरसेक्ट इट, शुड आई टच इट, और शुड आई नॉट कट इट एट ऑल। ये समझ में आता है कि d इक्वल टू 0 में रूट्स क्या होंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ d इक्वल टू 0, दैट यू विल हैव टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो इसका मतलब इट विल कट एट टू प्लेसेस, सो एक्स एक्सेस ऐसा आएगा बेटा, और y एक्सेस, लेट्स अज्यूम दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, है ना। आई एम अज्यूमिंग बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है। तो ये बताओ मेरे को, ध्यान से लिखना, मैं इंटरेस्टेड हूं इसके साइन पे कि इसका साइन कैसा है। सो इफ आई सेइंग इफ x belongs from minus infinity to alpha union beta to infinity, what about f of x, f of x के बारे के साइन के बारे में क्या कमेंट कर सकता हूं मैं, ये समझ में आना चाहिए। नाउ दिस इज मैथमेटिक्स लैंग्वेज, I have already given a as positive, बाकी बच्चे ध्यान से पढ़ो ना, ग्राफ को पढ़ना सीखो। अरे वो ये बोल रहा है कि x की वैल्यू आप यहां से लेके यहां तक कुछ भी डालो, और दूसरी वैल्यू बीटा से लेके यहां तक कुछ भी डालो, f ऑफ x क्या मिलने वाला है आपको, जल्दी से देख के बताओ। f ऑफ x मतलब y, इसका मतलब y, पॉजिटिव ना। देखो यहां से, यहां डालोगे तो पॉजिटिव, यहां डालोगे तो पॉजिटिव, तो आई कैन से दैट f ऑफ x इज y इज ग्रेटर देन 0। अनंत समझो ना, ये जो x है, ये जो x है ये वाला, ये यहां पे प्लॉट होता है x एक्सिस पे, ये आपने कुछ भी डाला यहां से लेके यहां तक, यू पुट एनी वैल्यू, एफ ऑफ की वैल्यू देखो ना, ये यहाँ पॉजिटिव है यहाँ पॉजिटिव, इनके बीच की वैल्यू नहीं डाल रहा, आई एम नॉट पुटिंग वैल्यू इन बिटवीन दीज। अंडरस्टूड दिस, ओके। नाउ टेल मी नेक्स्ट, इसी में दिस इज फर्स्ट, है ना, सेकेंड इसी में लिख रहा हूं मैं, फाइन, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर। टेल मी if x belongs to alpha and beta, what can I say about f of x, f of x के बारे में क्या बोल सकता हूं मैं, है ना। f of x मतलब y, नेगेटिव ना, देखो यहां से यहां तक सभी जगह नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये y एक्सिस में नेगेटिव है, करेक्ट ना। तो f of x would be what, less than 0, y would be less than 0।
ये समझ में आया? इज द फर्स्ट केस क्लियर टू एवरीवन? चलो नेक्स्ट वाला है ना। अभी नेक्स्ट सेकंड वाला है बेटा, इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज इक्वल टू 0, तो a इज ग्रेटर देन 0 मतलब 100% ऐसा है। d इक्वल टू 0 में क्या करूं? टच कर दूं, क्रॉस कर दूं? यस, यू सिंपली टच इट यहां पे, तो यहां पे ऐसा टच होके निकल गया है ना। सपोज करो y एक्सिस ऐसा है। अब बताओ, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू रियल रूट्स एंड इक्वल, टू रियल एंड इक्वल, d इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है। ठीक है, नाउ अगेन सेम कंडीशन, टेल मी if x belongs to R, then what can I say about y? y के बारे में क्या बोल सकता हूं मैं? Can I say that 0 भी हो सकता है ना? हाँ, तो इक्वल भी लगाना, इक्वल भी लगाना क्योंकि 0 है यहां पे। इसमें किसी को डाउट? अरे देखो ना, यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू डालो, y का क्या वैल्यू मिल रहा है आपको यहां से लेके यहां तक? ठीक है, चलो थर्ड वाला, if a is greater than 0 and d is less than 0, इसका मतलब क्या है? नो रियल रूट्स, क्योंकि हम रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहे हैं है ना। सो नो रियल रूट्स, बट इसके दो कॉम्प्लेक्स रूट हो सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये ऐसा तो रहेगा, बट इट विल नॉट कट दी एक्स एक्सिस क्योंकि d लेस देन 0 है। ठीक है, और a ऐसा है तो ऐसा होगा, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। नाउ टेल मी if I put x as real number, what can I say about y? हाँ, it is always positive। तो ये जो पूरा हम अभी कर रहे हैं है ना, it is falling under which category? That the signs of quadratic expression, we are trying to learn sign of quadratic expressions under various conditions. Are these first three conditions clear? So that I can take the next three conditions. ठीक है, okay, so let's take the next three conditions. first one तो ये थी ना बेटा, कट कर रहा था जब, ये जब कट कर रहा था, that was the first condition. बोलो। Oh, sorry, sir, by mistake. Forgot to lower my hand. Sir, बोलो। because a is greater than 0, we will have these graphs as U-shaped, right? Not the inverted U-shape. No. That is where I started from. If Yeah. a is greater than 0, and you'll always have this one, and downward and this one. Okay, sir. हाँ सर, वो जो आपने मैक्सिमम और मिनिमम वाला बताया था कि एक्स और वाई पॉइंट्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे उसके, तो सर वो कॉम्प्लेक्स डी के लिए तो वैलिड नहीं होगा ना? कॉम्प्लेक्स डी के लिए क्यों नहीं? सर कार्टेशियन प्लेन में कैसे डी कॉम्प्लेक्स होगा? कॉम्प्लेक्स डी जो है, डी कॉम्प्लेक्स मतलब आप एक्स की वैल्यू कॉम्प्लेक्स डालोगे। डी कॉम्प्लेक्स से मतलब क्या आपका, पहले तो ये बताओ।
कि सर जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है -d/4a, हाँ तो सर उसमें d की वैल्यू -1 मतलब आयोटा पुट करके देखो सर, फिर आएगा क्या वो आयोटा आंसर? कैसे पुट कर लोगे बेटा? डेफिनेशन में मैंने बताया ना, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हम रियल नंबर, ये रियल नंबर लाइन है, आप रियल नंबर लाइन से कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे पिक कर लोगे? हाँ मैं वही पूछ रहा था कि वो कॉम्प्लेक्स d के लिए वैलिड नहीं होगा ना? नहीं नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो अभी नेक्स्ट है गाइस, नेक्स्ट 3 केस a लेस देन 0 वाले, तो फटाफट आप ही बताते जाओ मेरे को। पहला केस, फोर्थ केस है वैसे तो ये, a लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0। तो a लेस देन 0 में 100% ऐसा हो गया। d ग्रेटर देन 0 में क्या करूं जल्दी बताओ? टच करूं, कट करूं? कट करूं क्या? हाँ ऐसा, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। तो लेट्स अज्यूम दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। So if x belongs from minus infinity to alpha union beta to infinity, what can I comment about f of x? जल्दी बताओ। नेगेटिव है ना, लेस देन 0। यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम हियर टू हियर इट इज नेगेटिव, फ्रॉम हियर टू हियर इट इज नेगेटिव। ठीक है, व्हाट कैन आई कमेंट इफ x belongs from alpha to beta? f of x is greater than 0। ठीक है, दिस इज फोर्थ। फिफ्थ वन, इफ a is less than 0, d is equal to 0, क्या करूं? टच, ठीक है ना, तो ऐसा टच करता हुआ जाएगा। ठीक है, सो इफ x belongs to real number, what can I comment of f of x is greater than or equal to 0। ठीक है, सिक्स्थ केस, इफ a is less than 0 and d is less than 0, तो क्या आएगा अभी? ऐसा आएगा, है ना। सो इफ x belongs to a real number, f of x would be always less than 0। Are all the 6 cases clear? ठीक है, चलो सो लेट अस, अब एक क्वेश्चन करना है आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक से ज्यादा करेक्ट आंसर हो सकता है। दिस क्वेश्चन आई एम गिविंग, इट कैन हैव मोर देन वन करेक्ट आंसर। ठीक है, सो लेट मी क्लियर दिस, I am writing the question. Question is, if the equation ax square plus bx plus c equal to 0 has roots alpha and beta, and it is given that a is greater than 0, ठीक है, such that alpha is less than -2, ठीक है ना, alpha is less than -2 and beta is greater than 2, then which among the following options are correct? Option number A, b square minus 4ac is greater than 0. Option number B, c is less than 0. Option number C, a plus mod of b plus c is less than 0. Option number D, 4a plus 2 mod of b plus c is less than 0. Fine. So answer carefully, take your own sweet time, no problem.
हाँ ध्रुव बोलो। नहीं सर, वो शायद गलती से रेज हो गया होगा। हाँ मॉड भी है वेदांत, इन ऑप्शन सी एंड डी इट्स मॉड बी। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑल आर करेक्ट, है ना। करेक्ट आंसर इज ऑल आर करेक्ट। सो लेट्स सी हाउ। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, इफ ए इज ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा ना? इसमें किसी को डाउट है कि ए ग्रेटर देन 0 है तो सर ऐसा बनेगा? ये तो पढ़ा ही था मैंने। ठीक है, अच्छा अब दूसरा ये है, ये चीज ध्यान रखो बेटा, ये जो है ना इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए डिफाइन नहीं होती। इनइक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए डिफाइन नहीं है, इट इज डिफाइंड फॉर रियल नंबर ओनली। तो उसने अल्फा और बीटा ये इनइक्वालिटी दे रखी है ना, और बोल भी रखा है कि रूट है। पहला तो उसने बोला कि रूट है, दूसरा उसने बोला इनइक्वालिटी दे दी।
इनइक्वालिटी दे दी मतलब उसने डायरेक्टली बोल दिया कि वो रियल है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस कैसा बनेगा, ऐसा कट करता हुआ जाएगा। Is this thing clear that inequality doesn't exist for complex number, it's only for real number? So by giving this inequality, question already said that this is real, so ये पहला वाला true हो गया। So let's assume this is alpha and this is beta। ठीक है, अब बताओ मेरे को, वो बोल रहा है अल्फा जो है वो -2 से छोटा है, तो -2 यहां पे आएगा कि यहां पे आएगा, राइट में आएगा कि लेफ्ट में आएगा, राइट में। तो मैं यहां पे -2 की लाइन बना देता हूं, दिस इज y x इज इक्वल टू -2, ये वाली लाइन। अच्छा, व्हाट अबाउट 2, बीटा के राइट में आएगा कि लेफ्ट में आएगा, बीटा ग्रेटर 2 है 2 से लेफ्ट में। ठीक है, तो ये जो है लाइन बेटा ये x इक्वल्स टू 2 की लाइन है। ठीक है, तो x इक्वल टू -2 और -2 के बीच में ही हमारा y एक्सिस होता है, दैट इज x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 कहां, यहां कहीं पे आएगा। ये चीज समझ में आई कि दोनों के बीच में कहीं पे x इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, नाउ लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर। ये बताओ मेरे को, ये क्या है, x इक्वल टू -2 है ना, तो f ऑफ -2 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, जल्दी बताओ। नेगेटिव, करेक्ट ना, देख सकते हो ये -2 है, इस पे ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, सो f ऑफ -2 इज नेगेटिव। अब इसमें -2 डालो, कितना आएगा, इट वुड बी 4a minus 2b plus c less than 0। अच्छा, व्हाट अबाउट f ऑफ 2, f ऑफ 2 भी नेगेटिव आएगा, देखो यहाँ पे ये नेगेटिव है, सो इट इज ऑल्सो लेस देन 0, सो 4a plus 2b plus c लेस देन 0। इसको क्लब करके मॉड की तरह लिख सकते हो, तो दिस आंसर इज ऑल्सो ट्रू। अच्छा, b बताएगा मेरे को, व्हाट इज c, c इज सिंपली f ऑफ 0। C का मतलब क्या है, f ऑफ 0, ये जट जाएगा ये हट जाएगा, f ऑफ 0 देखो यहाँ पे, दिस इज f ऑफ 0, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव, सो f ऑफ 0 इज लेस देन 0, इट मींस C इज लेस देन 0, सो दिस इज आल्सो करेक्ट। ये किससे मिलेगा, ये वाला जल्दी बताओ, ये किससे मिलेगा मेरे को, 1 से और -1 से, है ना, so f of 1 f of -1 both are less than 0, तो उससे ये c वाला भी प्रूफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर मैं आपको बस वो आंसर करने वाला था सर, इसलिए हैंड रेज किया, सॉरी सर। बी पार्ट, पीयूष f ऑफ 0 कितना होगा जल्दी बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0, पीयूष कुमार पवई, व्हाट इज f ऑफ 0? अरे बेटा f ऑफ 0 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में डालो जरा, पुट द वैल्यू ऑफ c ना, अरे ये एक्सप्रेशन है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, x की जगह 0 डालो, पुट f ऑफ 0, ये टर्म 0 ये टर्म 0, इट इज ओनली c। हाँ, वी कैन ऑल्सो सॉल्व बाय द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, करेक्ट। है ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालोगे तो क्या आएगा, इट वुड बी -b बाय a, दिस इज s2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज -b बाय a। अभी a उसने पॉजिटिव दे रखा है, दे रखा है ना ये पॉजिटिव,
ठीक है, सी बाय ए, सॉरी ये तो सम हो रही है, सी बाय ए होगा, हाँ इट इज सी बाय ए, माइनस बी बाय नहीं है, सी बाय एस टू सी बाय ए। तो ए तो पॉजिटिव दे रखा है ना, और लेस देन 2 ग्रेटर देन 2 का प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव, ये दे रखा है ना उसने, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो अब ये नेगेटिव कब बनेगा, जब सी लेस देन 0 होगा। हाँ बोलो बोलो। सर आपने कहा कि जब हम एफ ऑफ 0 लेंगे तब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तब वो एक्स वाले टर्म्स हटेंगे तब सी इक्वल टू 0 आ रहा है ना। पर बेटा ये तुम अभी फिर वहीं फंसे हुए हो, तुम इसमें फंसे हुए हो बेटा, ये इक्वेशन है, मैं ये कंसीडर कर रहा हूं, दिस इज एन इक्वेशन, दिस इज एन एक्सप्रेशन। हाँ समझा। हाँ ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन दिस अगेन। क्वेश्चन इज दिस कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट हैं अल्फा और बीटा, दोनों पे कंडीशन दे रखी है, अल्फा इज लेस देन -2, बीटा इज ग्रेटर देन 2। लेस देन -2 मतलब ये नेगेटिव होगा, ग्रेटर देन 2 मतलब पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, अल्फा बीटा वुड बी नेगेटिव। ठीक है, अल्फा बीटा क्या होगा, सी बाय ए, क्वेश्चन में दे रखा है ए इज पॉजिटिव, अभी ये पॉजिटिव है तो ये तो नेगेटिव होगा ना, तभी तो ये नेगेटिव बनेगा, क्योंकि यदि ये भी पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव मिलता है, नेगेटिव नहीं। इसको ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, दूसरा ग्राफ बना के, ग्राफ कैसा आया था, ऐसा, ये y एक्सिस आया था, ये -2 ये +2। ठीक है, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0 ओरिजिन है, तो f ऑफ 0 पे ये ग्राफ क्या आ रहा है, देखो नेगेटिव आ रहा है ना, ये नेगेटिव है, तभी तो c नेगेटिव आया। ये x इक्वल टू 2 था, डालो जरा x इक्वल टू 2 पे क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव मिलेगा ना, ये y एक्सिस है, ये वाला, ये नेगेटिव मिल रहा है। सिमिलरली इस पे क्या मिलेगा, ये भी नेगेटिव मिलेगा। सो f of 2 and f of -2 both are less than 0। f of 2 कैसे निकालोगे, इसमें 2 डाल दो x की जगह, 2 स्क्वायर प्लस 2b प्लस c, है ना, ये हमारा y है। सिमिलरली -2 डालोगे तो फिर y मिल जाएगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट सम गाइस, क्वेश्चन इज ax स्क्वायर प्लस 2bx minus 3c equal to 0 has no real roots। ठीक है, and a plus b is greater than 3c by 4, then options are, options a is greater than 0 but c is less than 0, option b a is less than 0, c is also less than 0, option c a is greater than 0, c is greater than 0, d
नन। करो। So the correct answer is A. Okay, the correct answer is A. Let's see how it is done. ठीक है, देखो, no real roots, it means D is less than 0. इसको रीअरेंज करो गाइस, इसको रीअरेंज करो, इसको रीअरेंज करोगे तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव है ना। इट वुड बी 4A प्लस 4B माइनस 3C इज ग्रेटर देन 0। ये किसकी वैल्यू है, दिस इज f ऑफ 2 गाइस, है ना। इसमें 2 डालोगे तो आपको ये मिलेगा, f ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड D इज लेस देन 0। तो कोई इसका मतलब समझाएगा मेरे को, कैन यू डिड्यूस एनीथिंग फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस। हाँ शेख, बोलो। Can I say the answer? हाँ So, हाँ बोलो। since f of 2 is greater than 0, that means the graph is U-shaped graph above the x-axis. X It's axis, not correct. inverted, so a हाँ, will be greater than 0, and हाँ, now the y-intercept it will be positive in that case. But we see that minus 3c is over there, so c has to be negative to make the third coefficient, the term with x to power 0 coefficient positive. So c will be less than 0. ठीक है, चलो, वेरी गुड। Thank you. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस,
if A and B are roots of x square minus 10 cx minus 11d equals to 0, है ना? And C and D are roots of x square minus 10ax minus 11b equals to 0. Then find the value of a plus b plus c plus d. Find a plus b plus c plus d. करो, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, कांस्टेंट मत देना. नो, रॉन्ग. नहीं, करेक्ट करेक्ट. साहित्य. मैंने बोला ना अतर, इतना तो हर कोई बच्चा बता देगा, उसके आगे करो. नहीं शंकर, इंटू 10 भी करो. नहीं राना, रॉन्ग है. सिर्फ मैनिपुलेट करना है गाइस, बिलीव मी, वेरी इजी क्वेश्चन. कोई ज्यादा इनका कुछ अलग से इनइक्वालिटी यूज नहीं हो रही है, कुछ इक्वालिटी यूज नहीं हो रही है, कुछ नहीं. इट्स प्योरली मैनिपुलेशन, दैट्स इट. बिलीव मी, कुछ भी अलग से यूज नहीं हो रहा है. यू टेक योर ओन स्वीट टाइम, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, कर लोगे.
हाँ राना करेक्ट है, करेक्ट है रोनित। नहीं जीरो नहीं आएगा ओम, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। करेक्ट है आदित्य, अथर्व करेक्ट है। कार्तिक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। नहीं पीयूष, कई तरीके से कर सकते, मैनिपुलेट करो बस। नहीं रिजुल इंटू 10 है। हाँ अभी करेक्ट है। सॉरी। हाँ 1210 इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, 1210 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो लेट मी शो यू हाउ। इस quadratic इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? a and b, so you can write sum of the roots a plus b as 10c and ab as minus 11d। सी, तो आप इसको मल्टीपल तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये जो मैंने अपने तरीके से सिंप्लीफाई किया, किसी बच्चे ने क्वाइट श्योर अलग तरीके से किया होगा, करेक्ट ना। c plus d it would be 10a, cd would be what, minus 11b, है ना। ये s1 है, ये s2 है, ये s1 है, ये s2 है। यहां तक तो सबको लिख गया होगा। ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग s1 प्लस s1, ये वाला ना, a प्लस b प्लस c। इन दोनों को ऐड करोगे, इफ यू ऐड दिस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, you'll get it what, a plus b plus c plus d, 10 of a plus c। यहां तक तो सारे बच्चे आ गए थे। ठीक है, तो अभी देखो, I'll do something, मैं इसमें ना c ऐड कर देता हूं दोनों साइड। I'll add c both side और इक्वेशन को रीराइट करके लिखता हूं, तो क्या आएगा, it would be a plus b plus c equals to 11c, है ना। और इसमें मैं I'll add a in this both side, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, it would be a plus b plus c would be 11a, करेक्ट। यदि मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। I'll get b minus d as 11 of c minus a। ठीक है, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है। अभी क्या करो, यहां से आप b का वैल्यू निकालो और यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। सिमिलरली यहां से d का वैल्यू निकालो और यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैं पहले ये वाला कर रहा हूं, आई एम टेकिंग द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, द वैल्यू ऑफ b वुड बी 10c minus a। नाउ सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, you'll get it what, a, b की वैल्यू क्या आएगी, इट इज 10c minus a, ठीक है, इक्वल्स टू, एक मिनट, डाउट बाद में बेटा। हाँ
10c minus a equals to minus 11d. Similarly दूसरा वाला करोगे तो it would be what? It would be c into, आपने अलग तरीके से किया हो doesn't matter, मेथड मैटर नहीं करता है, व्हाट मैटर्स इज आपका आंसर सेम आया कि नहीं, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट इट व्हाट, यू विल गेट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज 11b माइनस डी, 11b माइनस डी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे ना गाइस, यहां से 11 ये वाला यहां सब्स्टिट्यूट कर देना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 121 सी माइनस ए। अभी जो है वो सी ए के इक्वल नहीं होगा, सी ए के इक्वल नहीं होगा, है ना। तो क्या मिल जाएगा, यू विल गेट इट सी प्लस ए एज 121, और यहां सब्स्टिट्यूट कर देना, तो 121 into 10 you will get it what, this is 121, substitute this over here, you'll get 10 into 121, that is 1210. So there are various methods by which you can solve, this is one of them. I'm quite sure दूसरे बच्चों ने कई अलग तरीके से किया होगा. The answer is 1210. Understood? Okay, just give me a moment, let me see कि अभी आपका कितना बचा है, what part is left, just give me a moment guy. Excuse me. हाँ नहीं, quadratic में what part is left, I'm interested in that. Is the quadratic done or something left? एक मिनट से बस ले रहा हूं मैं डाउट. Just give me a moment. हाँ बोलो क्या डाउट है अभी. हाँ बोलो. Sir, you took a plus b as 10c. A plus B. हाँ. Sir, but I thought that a plus b is the sum of roots, so we'll take it minus 10c. अरे बेटा माइनस बी बाई ए होता है ना. हाँ. तो माइनस लगा जरा कंपेयर करके. Okay, from that way. Okay, sir. Thank you. हाँ, so let's see this guy. ठीक ना. इसमें I think we already did polynomial, degree of the polynomial. We started with this only. ठीक है. Then roots of the quadratic equation, solution by factorization, by completing the square, nature of the roots, है ना. ये बिना निकाले उनको, ये हमने पढ़ा था ऑलरेडी. We have covered this. ठीक है. कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता चुका हूं मैं ऑलरेडी लास्ट टाइम पे, S1 S2 निकाल के. मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मैंने आज बता दिया आपको. ठीक है. क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की हमने पूरा सॉल्व कर रखी हैं, ये सारे केसेस मैंने बता दिए आपको आज. ठीक है. So this chapter is complete guys. Correct na? There is nothing left as far as the FV module is concerned. As far as the FV module is concerned, there is nothing
left. Correct na? But in tomorrow's class, I'll teach something extra. Correct na? Quadratic equation का ही अभी करेंगे. I'll give one more lecture. Then we will हाँ, कल मेरा क्लास है ना? नहीं है कल? है क्लास कल मेरा? I think tomorrow is there. नहीं है? Let me check. Okay, let me check. हाँ, ओह सॉरी, बी का नहीं है, कल ए का है. कल ओनली 9th का है. ओह फाइन. तो मैंने आईडी, फिर लेट मी चेक, मैंने क्रिएट की हुई है आईडी. आई हैव टू चेक. मैंने आईडी क्रिएट की हुई है. डिलीट मार दूंगा, नो प्रॉब्लम. ठीक है. ठीक है, तो नो इशू गाइस. ध्यान रखना, अभी आप मॉड्यूल कर लीजिए, मॉड्यूल खत्म कर दीजिए. अभी मैं एक लेक्चर या हाफ लेक्चर और लूंगा. ठीक है, उसके बाद विल स्टार्ट विद ट्रिगो. ये वाला बताया तो था बेटा. अरे ये वाला पार्ट बच्चे आपको समझ में नहीं आया, तो ये देखो ना यहाँ पे, ये देखो, ये b की वैल्यू निकालो. यहां से b की वैल्यू कितनी आएगी, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो, tan c माइनस a. तो ये b की वैल्यू यहाँ डाली है, a को एज इट इज रखा है, b की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करी है, एंड दिस इज माइनस. हाँ, मैं डाल दूंगा. सॉल्यूशन चाहिए आप लोगों को. I'll prepare the solution of module of quadratic equation and I put it. बाकी आप पूछोगे तो बहुत से बच्चे सॉल्व कर देंगे आपको. There are many students in this group who will solve almost full module. तो उनकी हेल्प भी ले सकते हो आप, है ना? डन गाइस. ठीक है, तो चलो फिर मैं आज की क्लास आज की क्लास खत्म कर दूं. इंटरवल में क्या समझ में नहीं आया आपको? बोलो. लेट मी अनम्यूट यू. रेज योर हैंड. हाथ खड़ा करो. जल्दी रेज योर हैंड. हाँ, अभी बोलो, क्या समझ में नहीं आया? सर आप क्वेश्चंस बोलो ना, आप कोई क्वेश्चन बोल दो, कोई भी क्वेश्चन बना दो, मन से बोलो. सर एक स्पेसिफिक कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन बना दो बेटा, डजंट मैटर, जल्दी बनाओ. 1 minus 2x minus 3x. जोर से बोलो बेटा, समझ नहीं रहा. 1 minus 1 minus 2x dx square 2x minus 3x square minus 3x square divided by x minus 3x minus x square 3x minus x square minus 5 is greater than equal. greater than or equal हाँ, greater than or equal to 0.
हाँ, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो कैन यू फाइंड द, इसको पहले माइनस से माइनस कॉमन ले लूं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यहाँ से कॉमन लूंगा तो ये क्या बचेगा, इट वुड बी 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, और यहाँ से कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, इट वुड बी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ये ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया, यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस कट गया। अब इसको सॉल्व करो, क्या रूट आएंगे इसके, इसको ऐसा ब्रेक कर लो, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 1, यहां से क्या कॉमन आएगा, ठीक है, तो क्या बच जाएगा, x प्लस 1, यहां से क्या कॉमन आएगा, माइनस 1, क्या बच जाएगा, x प्लस 1। तो इसके रूट्स क्या आएंगे, इट कैन बी रिटन एज x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1। ये न्यूमरेटर पार्ट हुआ, जल्दी से डिनोमिनेटर पार्ट क्या होगा बताओ। हाँ, अलग से कर लो, 3 प्लस माइनस 9 है ना, माइनस 20, ये नेगेटिव आ गया, इसका d लेस देन 0 है और a पॉजिटिव है, मतलब ये नंबर, ये वाला एक्सप्रेशन, ऐसा वाला केस है जो हमने आज पढ़ा है, ये वाला, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, आज ही पढ़ा है हमने। नाउ अब क्या बचा, अब सिर्फ टॉप वाला बचा, तो टॉप वाले को प्लॉट कर लो, क्या डालोगे, you'll put it -1 and 1/3, हाँ, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, क्या चाहिए आपको आंसर, पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए, पॉजिटिव। तो बस पॉजिटिव आपको यहां मिलेगा और यहां मिलेगा, सो आंसर क्या आएगा, आंसर वुड बी -infinity to -1, is 1 included, yes, Yes. union -1/3 plus 1/3 to infinity, that is the answer. Okay, sir. Thank you. चलो ठीक है guys, so I'll end the class ना, चलो bye guys.